तो देखो अब ये एनर्जी लॉस, ये सेंकी डायग्राम जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। यानी सेंकी डायग्राम एग्जाम में आता है यार, ये असेसमेंट में आता है। अब देखो ये एनर्जी लॉस तो हो रहा है, तो ये एनर्जी एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? बेसिकली मैं कितना इनपुट दे रहा हूँ और मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है ना, वो एफिशिएंसी से लेने देना। इसको रोक देना भाई। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी मशीन में इनपुट दिया 1000 जूल का, कितने का इनपुट दिया भाई? और वो मेरे को बदले में जो आउटपुट दे रही है वो दे रही है 800 जूल का, तो वो कितनी परसेंट एफिशिएंट है? 80% के आसपास। कैसे आया? 800 अपॉन 1000 इनटू 100। यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी अपॉन आउटपुट एनर्जी इनटू 100। सॉरी उल्टा लिखा मैंने, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी इनटू 100। यानी कि कितनी मिली और कितनी दी थी वो एफिशिएंसी है टोटल। हां, और एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब 20% एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। अगर एफिशिएंसी 80% है, इसका क्या मतलब है भाई कि 20% एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। अब जो सेंकी डायग्राम है ना, उसको बनाना, उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत इजी है। तो ये पढ़ाया था आपने, मेरे को याद है। तो पहले ही बना। अरे 1 लाख जूल्स वाला वो क्वेश्चन था। And we can spot what energy transfers take place. However, the diagrams we've looked at are a bit simple, as in all the examples, some energy transfers were useful, we wanted them, and some were wasted, we didn't want them. And it wasn't always obvious which was which. Also, the way we looked at the diagrams didn't really show the conservation of energy. What we need is a diagram that shows all of this. And we actually do have it, and we call it a Sankey diagram. Let's look at a really simple one for a light bulb. So, what are the key features? Well, the thickness of the arrow going in at the start shows how much energy goes into the device. In this case, it's electrical energy. The thickness of the arrow going straight on shows how much energy is usefully transferred, in this case as light. And the thickness of the arrow going down is how much energy is wasted, in this case heat. So we can easily see those straight away. The thickness of the 2 arrows leaving must equal the thickness of the arrow going in, so we can see conservation of energy there. It should be quite obvious from this diagram that the light bulb isn't actually very good at doing its job. We'd actually say it's very inefficient. Actually, us physicists like to define efficiency, and we do that by using this equation. Efficiency equals useful energy transferred divided by total energy input. And if we look at it for the light bulb, we find that it's 20 joules here are usefully transferred to 100 joules going in, so the efficiency is only 0.2. The closer to 1 the efficiency is, the more efficient the device, the more energy it transfers usefully. Let's look at one more example, this time for the television. So a little bit more complicated here. We've got 250 joules of energy going in. And this time again, there's only 10 blocks. So actually, we've got 25 joules per block this time. We read a Sankey diagram in much the same way we read a graph. So we've got 250 joules of electrical energy going in. Let's look at how much energy is usefully transferred. We can see here actually, we've got 2 arrows for useful energy transfer. One is 2 blocks wide, and that's for the sound energy. So we can see we've got 50 joules of sound energy being usefully transferred. The other arrow is 6 blocks wide, so that's 150 joules worth of energy usefully transferred, and that's being transferred as light. Okay, let's look at the wasted arrow, the one going down. We can see that's 2 blocks wide, so 50 joules of wasted energy, and as it often is, it's wasted as heat. So, what's the efficiency of our television? Well, we've got 50 joules transferred usefully as sound, 150 joules transferred usefully as light. That's a total of 200 joules usefully transferred, compared to our 250 joules going in. So let's put that in our efficiency equation. We find 200 divided by 250 gives us an efficiency for the television of 0.8. Much, much better than we had for the light bulb. So, the important information to remember here is that in a Sankey diagram, useful energy transfers go straight on and wasted energy goes down. Also, we have our efficiency equation, which was just useful energy transfer divided by total energy input. ओके परसेंटेज जब ये आया नीचे होता है तो इसका मतलब वेस्ट ही हो रही है। हाँ, यूजफुल एनर्जी सीधी जाएगी, ऊपर होता है मतलब
ऊपर होता है तो भी यूजफुल है, सीधी गई तो भी यूजफुल है, नीचे ही वेस्टेज है बस। और हम मोस्टली स्ट्रेट ही लेके जाते हैं, ऊपर तो खैर सीधे गए तो अलग बात है। सर क्या करना है इसमें? सेंकी डायग्राम है, बस हमने वही समझा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्या हो गया? सर ये देखो तो बोलो यहाँ पे ये जो दोनों नीचे गई है तो क्या दोनों मेरी काम की एनर्जी है? नहीं। जो भी नीचे जाएगी वो मेरे अप्लायंस से मुझे नहीं चाहिए। जैसे बहुत बार हीट एनर्जी यूजफुल भी होती है, तो उसको सीधे भेज देना, फिर नहीं उसको सीधे भेज देना। देख कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन था सर उसमें अप्लायंस ऐसे में एक क्वेश्चन Appliance? क्रेडिट में सर ये नहीं ऐसा माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव में तो हीट एनर्जी सीध जाएगी। हाँ भाई वो अप्लायंस पे निर्भर करता है, उस पे अप्लायंस जो होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ हीट पे नहीं हूँ, मैं हूँ यूजफुल एनर्जी सीधे और वेस्ट एनर्जी नीचे। तो इस वाले केस के लिए साउंड और हीट वेस्ट और काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो अच्छा है। कुछ पंखा घूम रहा होगा। सर यहाँ पे वो लोग देखो वो जो मोटा वाला पाइप है ना वो नीचे भेज रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो वेस्ट हो रही है और अच्छा तो वो वेस्ट हो रही है। हाँ ऐसा है। Like तो ये देखो थर्मल पावर स्टेशन का वापस से है और देखो टोटल 500 जूल की एनर्जी है ना, तो कितने ब्लॉक्स में है ये पता करो। 1 2 ये 5 अरे, 5 10 15 20 25 मतलब 500 अपॉन 25 एक डब्बा 20 जूल भाई 5 ओके। तो एक डब्बा कितने जूल का बता रहा है? 200 जूल का बता रहा है। तो इधर बताओ इधर कितने डब्बे आई गेस 9 ब्लॉक्स है। ऐसा डिपेंड करता है। हाँ कि 5000 को मैंने 25 में लाया तो 5000 अपन 25 कर दो 200 जूल एक बॉक्स की एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कितने ब्लॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब बोलो 1800। हम लोग कैसे लाएंगे इसको ऑनलाइन? ट्रेन इधर से ऊपर एक तो यानी कि 1800 कैसे आया? 200 into 9 कितने ब्लॉक है उसके अंदर? 9 है 9। फिर यहाँ पे देखो नहीं ये 10 और ये 11 तो यहाँ पे 11 into 200 कितना हो जाएगा? 2200। एसी का वेट नीचे कर दूंगा यार। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक मिनट देखो ना यार, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 मतलब 1000 जूल। तो बोलो यहाँ पे एफिशिएंसी बोलो 1800 upon 5000 into सीधा सिंपल, क्योंकि जो नीचे गई वो काम की है। नहीं यूजफुल एनर्जी इनपुट ही लेता हूँ मैं, तो यानी कि सिर्फ 1800 दूंगा अपॉन 5000 into 100 तो 36% जैसा कुछ बनना चाहिए। सर ये नहीं समझा अभी मेरे को। 75 अरे लास्ट में आपने 36% कैसे लिखा? वो 1800 अपॉन 5000 into 100 का आंसर। अच्छा वो तो थोड़ा फ्लेक्स मारना पड़ता है ना कैलकुलेशन। हाँ हाँ, चलो। माइनस में लिखा सर। नहीं जाने देना, प्लस माइनस नहीं आता मेरे को। An electric car company claims that its 600 kg vehicle can attain a speed of this much in 20 seconds. 600 किलो की व्हीकल है, इतनी स्पीड अटेन कर सकती है 20 सेकंड में और उसकी बैटरी का पावर रेटिंग 2 किलोवाट का है। तो एफिशिएंसी ऑफ द कार पता करो। तो सारी गाड़ी छोड़ दो, बैटरी की पावर इतनी है, कितनी पावर यूटिलाइज हुई वो पता पड़ेगी। तो बोलो पावर निकालना है, मेरे को क्या करना है? इलेक्ट्रिक कार का पावर निकालना। अच्छा पावर और वर्क है मेरे पास, एनर्जी अपॉन टाइम ले लो, एनर्जी अपॉन टाइम ले लो। एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv स्क्वायर। लेकिन एक दिक्कत दिखी मुझे, क्या तुमको दिखी? वेलोसिटी नहीं है। 5/18 करना पड़ेगा हाँ मीटर पर सेकंड। तो 5/18 करोगे तो 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो यानी कि हाफ इनटू 600 इनटू 10 का स्क्वायर। तो बोलो 30000 मेरा तो आया, 30000 मेरा तो आया, 30000 जूल। और पावर का फार्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, तो 30000 अपॉन 20 20 मैं सोच विचार कर रहा सर था 30,000 क्या आया? 1500 क्या 15,000 वॉट्स। 1010 कट गया जूल। 1500 वॉट वॉट्स सेकंड। ठीक इसको जूल्स में इसको- कन्वर्ट करोगे। देखो ना, हाँ मतलब 1500 जूल हुआ ये। और वॉट हुआ पावर वॉट में आता है। पावर तो वॉट्स में आता है। ये इतना वॉट है और इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो डिवाइड बाय 1.5 किलोवाट। किलोवाट। तो 2 किलोवाट में से कितनी यूज हो रही है? 1.5। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? 1.5 अपॉन 2 into 100। ठीक है, अपना आंसर भी वही आ रहा है 1.5 अपॉन 2 into 100 करो 75% आ रहा है। इनका काम देख लेते हैं, टेंशन नहीं लो। अरे 30 इनका भी देख लेते हैं क्या क्या है। 75% ही आता है। सही तो है। अच्छा ओके, इन्होंने दोनों को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कौन कर दिया? काइनेटिक एनर्जी कैसे बनेगी?
इनका भी सही है। इन्होंने इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी अलग अलग से निकाली है। कैसे? इनपुट एनर्जी कौन दे रहा है? ये जो इसकी बैटरी है वो दे रही है। तो अगर 20 सेकंड तक ये चली है तो ये 2 किलोवाट है, इसको 2000 वाट में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, और 2000 into 20 किया ना तो 40000 जूल की इनपुट एनर्जी है, और आउटपुट एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से आ रही है 30000। तो 30000 अपॉन 40000 into 100। हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने पूरा पावर ही देख लिया कि 2 किलोवाट की पावर है, मैं कितना यूज कर रहा हूँ 1.5, तो 1.5 अपॉन 2 into 100 करके भी हमारा आंसर आ गया। तो दोनों वे ठीक है, मुझे लग रहा है अपने ने जो किया वो ज्यादा सिंपल है। रुको देख लो, थोड़ा देख लो अच्छे से। सर मीटर से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 5/80। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5। ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड गया था, वहां पे 5/18। ये वाला भी समझ गए है ना? बस इन्होंने दिमाग लगाया ज्यादा कि बैटरी है तो वो भी कुछ इनपुट एनर्जी दे रही है, तो उसकी भी एनर्जी निकालनी, मतलब वर्क निकाल लिया जो तो वही किया है। मैं तू डाले इसलिए तो है। हमने बस क्या कर लिया, हम लोगों ने ना पूरी एनर्जी नहीं निकाली, हमने सीधे पावर से एफिशिएंसी निकाली, और इन लोगों ने एनर्जी से एफिशिएंसी निकाली है। ठीक है, और कुछ नहीं, इनका भी अच्छा ही है। बढ़ू आगे? हां जी। समझ आया कि नहीं आया? 5 मार्क का सवाल था भाई। इजी वर्कशीट नहीं कर रहा है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पर देख ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। सर वो वर्कशीट में देखो ना, एक बार सैंपल डायग्राम्स बनाने का क्वेश्चन है तो बना। वो बनाने का नहीं है। नहीं आएगा। कौन बनाएगा ऑनलाइन? हाँ नहीं आएगा बनाना। आपने पता आएगा। अरे इंटरप्रेट करने के लिए आएगा। एक्सप्लेन व्हाई कॉइल हैव कॉपर बेसिस। क्योंकि तो गुड कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर है, हीट ट्रांसफर करेगा, हीट के कांटेक्ट में आएगा। तो पढ़ो, इट हैज एन एक्सीलेंट हीट कंडक्टिविटी दैट मेक्स कॉपर अ परफेक्ट बेस मटेरियल फॉर पॉट्स एंड पैन्स। इट इज वाइडली नोन दैट कॉपर कंडक्ट हीट 5 टाइम्स बेटर देन आयरन। वाइडली नोन बात है। मैं क्या बच्चे अरे भी है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। और 20 टाइम्स बेटर देन स्टेनलेस स्टील ड्यू टू इट्स लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, समझना, बहुत ध्यान से समझना। मेरे को टॉपिक खींचने का बिल्कुल मन नहीं है ना। 5 मिनट का टॉपिक है, मैं इसको 15-20 मिनट बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। एकदम ध्यान देना, खत्म हो जाएगा, बहुत इजी है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये मेथड है हीट ट्रांसफर के। मेरी बात को ध्यान देना, ये हीट ट्रांसफर किस तरीके से होता है ना, उसका मेथड है। तो देखो, कंडक्शन में क्या होता है, सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में। ध्यान देना वर्ड पे, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है भाई, सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। एक चीज गर्म है और एक चीज ठंडी है ना, तो इनके बीच में कांटेक्ट होगा ना, तो इसकी गर्मी जो है इसमें भी जाने लगेगी और अल्टीमेटली दोनों वार्म हो जाएंगे। ये भी थोड़ा सा, इसका भी टेंपरेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, और इसका हायर हो जाएगा, अल्टीमेटली दोनों वार्म है। हॉट नहीं है, ये वाला हॉट नहीं है, अभी क्या है, वार्म है, यानी कि थोड़ा सा कम गर्म है। फिर सर इसका आइस और कंडेंसेशन ऐसा बना कि नीचे गर्म पानी ऊपर ठंडा पानी, तो वो होता है वो कन्वेक्शन हुआ। यानी कंडक्शन में क्या होता है, मेरी बात समझना, अगर मेरी बातों पे ध्यान दोगे ना, जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। हीट ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में, तो पानी गया। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, कंडक्शन खत्म। हैंड एक एग्जांपल हो सकता है। बोल सकते हो सर अगर हम लोग हाथ को गर्म पानी में डालें तो वो भी तो कंडक्शन है। फिर कंडक्शन बोलना इतना सही नहीं है, वो थोड़ा बायोलॉजी की तरफ जाता है। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में तो उसको दे रहा कॉपर वायर वगैरह को। हां सर कंडक्शन में बोल सकते, लेकिन कुछ नहीं सही नहीं बना रहा है। सर जो एज में आप तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो आगे होगा। सर जो एज चलो। आपने इस पे टेस्ट दी थी वो आपके पास है अभी भी? सब कुछ है मेरे पास। भेज दो ना। अभी नहीं भेजूंगा, वो मैं टेस्ट वापस तुम करना। अरे कौन सी वो हो जाएगा 130 मार्क का पेपर, 40 का था। 140 का था। और उसमें से सबसे ज्यादा किसका है? उसके 133 लाया तब हम बहुत स्मार्ट। क्योंकि 140 में से 133 सर जब मैं एब्सेंट था वो था ही नहीं। तू दुनिया से ऐसे तो तू पैदा ही नहीं हुआ ना। हमको तो 133 भी अच्छे नहीं लगते थे। हां भैया मैंने मुंह से कहा। और उसके बाद तुम्हारा डाउनफॉल इतना हो गया कि तुम 33 भी लाओगे तो भी खुश हो डाउनफॉल ये था। सर चलो। में सबसे कम किसके आए थे? तेरे मेरे। कन्वेक्शन ध्यान इधर सेकंड चारवी इधर। कन्वेक्शन क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल। गैस के मूवमेंट से, लिक्विड के मूवमेंट से हीट ट्रांसफर हो रही है, मतलब फ्लूइड्स के मूवमेंट से जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना, वो क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। यानी कि ये गर्म था, यहाँ से गैस निकली,
ठंडे के पास गई, इसको भी क्या कर दिया, बॉम्ब कर दिया। और या तो अगर मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, पानी गर्म कर रहा हूँ मैं, तो नीचे का पानी गर्म होएगा, ऊपर का जाएगा, नीचे वाला पानी ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, फिर गर्म हो जाएगा, नीचे वाला हीट और ऊपर खींचेगा। यानी इन द सेंस यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कन्वेक्शन में लिक्विड या गैस जो होते हैं ना, उसकी मूवमेंट से हीट ट्रांसफर हो रहा है। कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो कंडक्शन कन्वेक्शन में तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। कंडक्शन એટલે सॉलिड, कन्वेक्शन એટલે लिक्विड और गैस से हीट ट्रांसफर। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स है। एग्जांपल देना नहीं। आयरन सारे एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे एनर्जी वेव्स है भाई, यहाँ पे कोई लिक्विड गैस नहीं जा रहा है, एनर्जी जा रही है ना। वो होता है ना माइक्रोवेव या हीटर टाइप होता है, तो उसमें क्या कोई हवा निकलती है क्या, गर्म हवा निकलती है क्या, नहीं, रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब वेव के फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, ठंडे को भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी। तो ये कहानी है, लेकिन मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। इसके ऊपर ना मैं आज या कल में वर्कशीट एक भेजूंगा ग्रुप में, लगभग बहुत सारे उसमें वो होंगे सिनेरियोस, अब किसी भी बहुत सारे सिनेरियोस होंगे, उसमें तुमको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन करना होगा। तो अगर तुम लोग ऑनलाइन ही ऐसे टिक कुछ कर सको तो अच्छी बात है, वरना प्रिंट करके निकाल के दे। बट मैंने तो इसकी लाइव वर्कशीट की है सर। अच्छा है। अरे सर हाँ, जैसे ये फायर पिट भी होता है, देखो इसको लेके जाओगे ना यहाँ पे, तो भाई ये गर्म होगा, इसके गर्म होने से तुम्हारे हाथ में गर्मी सही लगेगी। बात। तो मेटल के कांटेक्ट में जो तुम किसके कांटेक्ट में हो, मेटल मेटल के। के। तो दो सॉलिड यहाँ पे कांटेक्ट में, ये कंडक्शन हुआ। इधर ऊपर तो गर्म हवा निकलेगी, वो कन्वेक्शन, लेकिन दूर जो फील हो रही है वो रेडिएशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो हर जगह जाती है। फोटोन और रेडिएशन और कन्वेक्शन में क्या कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आग लगाई है ना मैंने, तो ये धुआं ऊपर की तरफ जाता है ना। कभी अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आग लगी है, तो धुआं क्या हर तरफ जाता है, गैस के हाँ, तो गैस के थ्रू हो रहा है वो, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। तो कन्वेक्शन, लिक्विड नहीं है यहाँ पे सानवी, लिक्विड नहीं है यहाँ पे, गैस है, या तो लिक्विड या तो गैस, बोथ आर फ्लूइड। हाँ, तो यानी कि बस वो तुम लोग एक ही एग्जांपल यार को, इधर मैंने आग लगाई है, क्या जो धुआं निकलेगा वो सिर्फ ऊपर जाएगा ना, वो क्या हर तरफ जाने वाला है क्या? तो यानी कि वो जो धुआं है वो गैस है, तो वो गैस के फॉर्म में हीट ऊपर जा रही है। सुन लो ना इधर, तो जो गैस ऊपर जा रही है हीट, तो ये कन्वेक्शन है। लेकिन आजू बाजू में जो वार्मथ फील हो रही है वो क्या है, रेडिएशन। वहां पे कोई गैस नहीं जा रही है भाई, तो वो रेडिएशन है। ये कहानी है, समझ जाना। ओके मेरे ऊपर रखते हैं क्योंकि ज्यादा गर्म ऊपर है ना, ऊपर रखते हैं। वो बुद्धि है, वो बाजू में बोले बुद्धे ऊपर रखते, बुद्धि नहीं। सर बॉल फायर के ऊपर आकर तो हाथ जल जाएगा। सर स्मॉल्स बनाते हैं, स्मॉल क्या हुआ, बॉल फायर के हाथ ऐसे ऊपर रख के जल जाएगा। एकदम ऊपर, थोड़े ऊपर ऐसे रखना। हाँ हम ऐसे रखते हैं, हम रेडिएशन में काम करते हैं, पर वो बुड्ढे लोग वो तो फिर निपट ही जाएंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बनाने की ट्राई कर रहा था। सुनो। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, अब जो पढ़ेंगे वो थोड़ा एनामलस टॉपिक है। आइस में अरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, वो एनामलस बिहेवियर दिखा रहा है, नॉट नॉर्मल। तो अब तो समझ रहे हो, हम नॉर्मली जाते नहीं है, समझते नहीं है। सर आपने बड़ी से सिखाया सर आपने 8th में मेरे लगा दिए थे इसके चक्कर में। मेरी गलती नहीं है। चलो अब हीट है, हीट क्या है, इधर देखो, यहाँ इधर मार दूंगा भाई। तो हीट क्या है, हीट टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर जो है उसको मेजर करने के लिए 3 यूनिट है हमारे थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट की बात हो रही है, डिवाइस की बात नहीं हो रही है। तो 3 यूनिट है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो मेरी बातों को ध्यान से समझना। सेल्सियस में 273 जोड़ दोगे ना, तो केल्विन आ जाएगा। क्या बोला, सेल्सियस में 273 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। और अगर तुम लोगों को, अब मेरे को याद नहीं है यार, होता अरे कुछ 5/9 9/5 था ये, 9/5 क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सर ये करके क्या मिलेगा? ये हमें याद रखना है। हाँ जी, ये याद रखना है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9C/5 + 32। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन है। और अब देखो, ये मेरे को तो यही याद है, इधर से मैं सेल्सियस का खुद बना लेता हूँ। ये 5 इधर भेजो, 32 इधर भेजो, 9 नीचे ले लो बाद में। और केल्विन बहुत विचित्र क्वेश्चन था इसके। तो F - 32 और केल्विन का
5/9 इज इक्वल टू सेल्सियस। केल्विन का मैंने बताया इधर दिया नहीं है सर वो 5 into 5 into f नहीं हो जाएगा? 5 32 के साथ भी जाएगा क्योंकि पहले ये 32 बाजू में जाएगा, एलसीएम नहीं है ना, एलसीएम नहीं है ना, तो इसलिए पहले 32 माइनस पे जाएगा, फिर 5 मल्टीप्लिकेशन में 9 डिवीजन में, और सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। ये कन्वर्जन तुम लोगों को पता होने चाहिए। अरे इससे समझने जैसे कुछ नहीं है, देखो कभी क्रेडिट पे पढ़ा ही नहीं, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं था, इसलिए तो मैंने बोला एनामलस चीज है, पढ़ा ही नहीं तुमने, ना मैंने पढ़ाया ना स्कूल ने पढ़ाया, पढ़ा ही नहीं। सुनो मेरी बातों को, अगर लेट्स से 23 डिग्री सेल्सियस है तो कितना केल्विन होगा, क्या करोगे? यहाँ पे 23 पुट करोगे या नहीं करोगे? 23 प्लस 273 294 क्या 296 क्या केल्विन आ जाएगा। यानी कि तुमको बस यही बोलेंगे। अब मैं तुमको बोल दूंगा कि भाई 40 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट बताओ। अब मैं तुमको बोल दूं 40 plus 32 तो तुम लोग सी की जगह क्या डाल दोगे? 40 मतलब मैं तो लोगों को बोला फोटो ले रहा हूँ यार। करो 40 डिग्री है सेल्सियस, 40 है फ़ारेनहाइट निकालो। हेलो क्या 140 ना सेल्सियस 40 है। ऊपर है ना, लॉक कर रहे हो ना? अबे मेंटल मैथ से है ना, अब आकर चलता था सब 104 Fahrenheit। सर 104 ओए चलो अब आकर चलता था मुझे 92 क्यों आया? आगा मार के एक बार कर अब मैं भूल गया। 105 104 104 40/5 8 डाइले 72 104 मैं 104 अब आकाश मुझे मेंटली मेंटली का 100 प्लस 33 प्लस 32 है। तो वहाँ ऐसा लिखा 33 लग रहा है। तो अभी इधर रहते हैं बाजू में, भाई भाई लग रहा है। बाजू में है। वो पढ़ो ना, सुपर रेफरेंस पढ़ो ना, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन का एक बार ओके सर। पढ़ो। ये ना नहीं नहीं जो उसमें साइड में पढ़ ले। इतना पढ़ना क्या है? तो ऐसी बंद करो ना यार। अबे गर्मी हो रही है। तो ना सब चीज पे अब जब मैं फुल पहन के नहीं आता तब बोलता फुल पहन के आया करो। गर्मी लग रही है कल से तो हुडी पहन के आता हूं। इसकी हुडी टू तो 12 बजे क्या इसमें जाना है। मेरा नहीं है, मेरा नया फोन है। कब दे आधे घंटे 5 बजे आ जा फोन दे। मेरे पास फोन ही नहीं पीएनडी का बहुत भाग तेज है। हो गया बस रेडिएशन वाले में मूवमेंट ऑफ फोटॉन्स मेरा मेरा मैट लेकर चली वो ऐसे कर सकता है Don't touch it. It is quite delicate. सर डाउट आरुष likes to do touch it. No fighting. रेडिएशन में मूवमेंट ऑफ फोटोन्स इन्हें लिखा नो मूवमेंट वेव मूवमेंट ऑफ वेव में पार्टिकल नहीं जाता है, फोटोन कह रहे। चलो ये मुझे लगता है तुम लोग को क्लियर हो गया हो गया। अब इसमें ना सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमने कभी नहीं पढ़ा है। अब जो हम पढ़ रहे हैं हमने कभी नहीं पढ़ा है। कॉज ऑफ ये सारी सी ब्रीज लैंड ब्रीज या तो तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा होता अलग बात है, लेकिन तुम्हारे कोई करिकुलम में मुझे याद नहीं आता है। तो आइए से पढ़ा होगा, पता नहीं किसी तो सर ये तो एल नीना ला नीना वाला कांसेप्ट हो गया ना। सी ब्रीज मैंने मार दूंगा एक एक को, आके मेरे को एक्सप्लेनेशन में तकलीफ पड़ेगी। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ये कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे ना ये विंड का मूवमेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये विंड के मूवमेंट की बातें हो रही है कि किस तरीके से हवा चल रही है, क्योंकि हवा जो चलती रहती है ना, इसके पीछे दो ही मेन कारण है।
सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। और ये जो है ना, ये गर्म हवा ठंडी हवा के कांसेप्ट पे ही बेस्ड है। अगर मैं फोटो को ध्यान से देखूं, तुमको भी कुछ नहीं पता, समझ लो समझ लो मेरे को भी कुछ नहीं पता, अपने को सब कुछ फोटो से समझना है। फोटो में क्या देख रहे हो, सी ब्रीज में क्या हो रहा है, गर्म हवा ऐसे घूम के ठंडी के बाद ठंडी हवा को इधर भेज दिया, यानी कुछ ऐसा फ्लो है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्म हवा ठंडी हवा के बीच में क्या देखने मिल रहा है, फ्लो देखने मिल रहा है, फ्लो। और ये लैंड ब्रीज में क्या हुआ भाई, देखो एरो देखो किस तरीके से गया। तो जब सी ब्रीज बोल रहे हैं ना, तो सी से हवा आ रही है, और जब लैंड ब्रीज बोल रहे हैं तो लैंड से हवा जा रही है सी में। ऐसी कुछ कहानी चल रही है, यानी कि इन फोटोज को देख के तो हम यही समझ पा रहे हैं। अब इसको समझते हैं डिटेल में क्या है। देखो, इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग डे टाइम, कोस्टल एरिया समझते हो ना भाई, वो जो पानी जहाँ पे पास में होता है, मेरी इमेजिनेशन मत करना। तो in coastal areas during daytime there is a regular flow of cool air from the sea towards the land, यानी कि ठंडी हवा जो होती है ना, वो लैंड की तरफ क्या होती रहती है, आती रहती है डे टाइम के वक्त सी से, ये कहानी है। और at night there is a reverse flow of air from land to sea, यानी कि ठंडी हवा इधर से कहाँ जा रही है, सी पे जा रही है। तो यानी कि दिन के वक्त ठंडी हवा सी से लैंड पे आ रही है, रात के वक्त ठंडी हवा लैंड से सी पे जा रही है। इसके पीछे कहानी क्या है, सब समझ आ रहा है? This happens because during the daytime lands get heated faster than water. धूप आ रही है ना भाई मेरे, तो सनलाइट है तो लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होती है पानी के कंपैरिजन में, क्योंकि पानी पे हीट पड़ी, पानी इवेपोरेट हो गया, और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, तो पानी ठंडा रह जाता है। लेकिन जो जमीन है भाई, वहां पे तो पानी नहीं है ना, नॉर्मली तो पानी है नहीं, तो जमीन जो होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। Land gets heated faster than water and radiated heat from land heat the air above it, यानी कि जमीन गर्म हुई, इधर गर्म हुई, तो धीरे-धीरे गर्म हवा जो है वो रेडिएशन से क्या हो जाएगी, ऊपर की भी हवा को गर्म करती रहेगी। यानी कि सबसे पहले धूप पड़ी जमीन पे, धूप पड़ी, सुनो रिवीजन स्लाइड है ये, एक मिनट रुको, ये जो धूप है, ये धूप कहाँ पड़ गई, जमीन पे पड़ गई, जमीन की हवा को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब नीचे की हवा गर्म होगी तो धीरे धीरे वो गर्माहट कहाँ चली जाएगी, ऊपर भी चली जाएगी, वो गर्माहट ऊपर भी चली जाएगी। और जैसे कि हॉट एयर इज लेस डेंस, हॉट एयर जो है वो कम डेंस होती है, तो जो कम डेंस वाली चीजें होती है वो ऊपर जाती है कि नहीं जाती है भाई, वो बायनेंसी एयरशिप वाली वर्कशीट याद कर लो, है ना, जिनको करेक्शन मिल गए। तो यानी कि वो जो गर्म हवा है वो क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, तो यानी यहाँ पे भी गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, और ऐसा एक फ्लो बनने लगता है, ऐसा एक क्या होने लगता है, फ्लो बनने लगता है। अब देखो मेरी ना बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, टॉपिक अलग है। यहाँ पे गरम कौन है, जमीन है, गरम कौन है, जमीन है, उसमें हीट एनर्जी आई, हवा में हीट एनर्जी आई, ऊपर जाते जाते क्या हो जा रहा है, वो ठंडा हो जा रहा है, ऊपर जाते जाते क्या हो जा रहा है, वो ठंडा हो जा रहा है। ठंडा होके ना ये फ्लो कुछ इस तरीके से बन जाता है ना, यानी ऊपर जाके अगर थोड़ा घूमता रहेगा तो ठंडी हवा हो जाएगी, और ठंडी हवा क्या हो जाएगी, वापस से नीचे आ जाएगी। गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है, ठंडी हवा हमेशा नीचे आती है। कहने का मतलब क्या है, समझो मेरी बातों को, थोड़ा कंसेप्ट। तो लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर एंड रेडिएटेड हीट फ्रॉम लैंड हीट द एयर अबव इट, जो लैंड से रेडिएटेड हीट आ रही है वो ऊपर की हवा को भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी। द हॉट एयर राइजेस एंड क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, हवा चली जाएगी ना तो एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, और सी वाटर डज नॉट गेट हीटेड सो रैपिडली, सो एयर अबव द सी इज कंपैरेटिवली कूल। समझे क्या देखना कौन है नाम है, पहले में मम्मी का तो ही उठेगा, ओलवी में उठा कट कर दिया, अभी मुझे भी दिखा एक बार, घर से निकल जी, अरे नहीं मां से मुझे देखना तो सर है, ये देखना अरे तो चार्ली इसका बस कौन आउट ऑफ सेकंड विद्या जी 0.5 था किसमें फ्रॉम द स्टार्ट पाने वाला क्या भैया पॉज कर दो, कुछ आया ही नहीं, देना मुझे काम है, हां बोलने ना डाला ना ढूंढ के दे दो, क्या ढूंढ रही है, वो साइड से मुझे लगता है ना बात होगा। तो देखो जैसे ही वो हवा गर्म हुई ना जमीन के ऊपर की, तो वो हवा ऊपर चली गई, तो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। कैसे, तो हवा पहले यहाँ पे आ जाती, यहाँ से हवा चली गई, तो जो कंसंट्रेशन है, आपको क्यों इतने कॉल आ रहे? अरे बल्ले का पता नहीं कहाँ गए कोई काम से, आया भी है नाम आपको साइड ही पता नहीं। हेलो क्यों दे नहीं थी
रेजिस्टर के साथ कैसा है चुप हो जा। इसी में से कुछ सवाल है वो पूरा हो चुका है ना, उनको आरएस या आरडी में से फोटो खींच के दे आ गया। पागल हो गया, चुप नहीं होता क्या? चलो मेरा फोन तो वो जो हवा थी, सुनो सुनो चलो सुनो, ये जो हवा गर्म होके ऊपर चली गई, तो पहले यहाँ पे हवा ज्यादा थी, अब यहाँ पे हवा क्या हो गई, कम हो गई, तो इसलिए लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो गया। अब देखो मेरी बातों को ना ध्यान से सुनना, इस जगह पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएटेड है, यहाँ पे हवा कम है, लेकिन क्या यहाँ पे हवा कम है? नहीं। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा नहीं जाएगा? यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, तो ठंडी हवा यहाँ पे क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। अब मेरी बातों को ध्यान से, ठंडी हवा इधर मूव करी तो यहाँ पे कैसा रीजन क्रिएट हो गया, लो कंसंट्रेशन। और इसके ऊपर जो ठंडी हवा है वो क्या आएगी, नीचे आएगी, वो क्या आएगी, नीचे आएगी। तो यहाँ पे कौन सा रीजन क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। तो यहाँ से हवा कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन क्रिएट हुआ था ना, नीचे से हवा आई थी, तो समझे साइकिल, समझ ये साइकिल है। तो यानी कि ऐसी कहानी है। तो देखो the hot air rises and creates an area of low pressure. Sea water does not get heated so rapidly, so air above the sea is comparatively cool. A high pressure area form above sea water as compared to air over land. मतलब यहाँ पे एक high pressure area बन जाता है इसके comparison में। तो क्या होता है, therefore cooler air over the sea flow towards the land, यानी region of low pressure area पे चला जाता है। यहाँ से जो ठंडी हवा है वो यहाँ पे आ जाती है, low pressure area पे आ जाती है। और the movement of air from one region to other creates wind, इसी को तो हवा बोलते हैं भाई, हवा चल रही है, विंड किसको बोलते हैं? तो यानी ये जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, विंड चल रही है। मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे एंड फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग द नाइट रिवर्स फ्लो ऑफ एयर अगर, यानी कि मूवमेंट ऑफ विंड देखने मिलती है सी से लैंड में डे के वक्त, सी से लैंड में डे के वक्त, और लैंड से सी पे, लैंड से सी और ड्यूरिंग द नाइट रिवर्स फ्लो ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि लैंड कूल डाउन रैपिडली, जितनी जल्दी जो गर्म होता है ना उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। यानी कि लैंड जितना जल्दी गर्म हुआ था उतना जल्दी रात को क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और एयर अबव द लैंड एकदम कूलर, और सी वाटर धीरे धीरे ठंडा होगा, तो एयर अबव द सी इज हॉटर एज कंपेयर्ड टू लैंड, समझना, यानी कि ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यहाँ की हवा जो है वो थोड़ी सी गर्म है एज कंपेयर्ड टू यहाँ की हवा, तो बोलो यहाँ की हवा ऊपर जाएगी, समझ जाना इसी बार में, वरना ऊंचा हो जाएगा। यहाँ की हवा ऊपर चलेगी, तो बोलो इधर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हवा कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। अब यहाँ से हवा वहां गई, तो यहाँ पे कैसा रीजन क्रिएट हो गया, लो प्रेशर का, हवा चली गई ना, अच्छा तो लो प्रेशर का, तो इधर से नीचे हवा गई, फिर यहाँ पे कैसा रीजन क्रिएट हो गया, यहाँ नीचे, तो ऐसा पूरा फ्लो बन जाएगा। एक सर एक जगह पे लो प्रेशर होगा ना हमेशा, हाँ, तो इसमें घूमता रहेगा, वो लो प्रेशर कहीं ना कहीं रहेगा, इसलिए घूमता रह रहा है। अगर हर जगह पे प्रेशर इक्विलिब्रियम आ गया ना तो फ्लो नहीं आएगा। सानवी, मेरे को बहुत खराब लगता है जब मैं तेरे को ही समझा रहा हूँ और तू ही बाजू पीछे देख रही है। तो ये कहानी है। तो सी वाटर कूल डाउन स्लोली, सो द एयर अबव द सी इज हॉटर एंड हैज अ लोअर एयर प्रेशर एज कंपेयर्ड टू एयर प्रेशर ओवर द लैंड, देयरफॉर कूलर एयर प्रेजेंट ओवर लैंड फ्लोज टुवर्ड्स द सी। एक बार रीड करो शांति से, सुना है, बस सुना है, कोई क्राइटेरियन डीबी में एब्सोल्यूट जीरो या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो जो होता है ना वो लोवेस्ट पॉसिबल टेंपरेचर है। लोवेस्ट पॉसिबल टेंपरेचर है जहाँ पे हीट ही नहीं है, हीट ही नहीं है। टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली कितनी हीट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस इन एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी गर्मी है, कितनी हीट है। अगर हीट कम है तो हम कूल बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहाँ पे हीट है ही नहीं, हीट ही नहीं है, तो इसको जीरो केल्विन टेम्परेचर बोला जाता है, क्योंकि वहां पे केल्विन स्केल में ना जीरो का वैल्यू आता है। केल्विन स्केल में कितने का वैल्यू आता है, जीरो का वैल्यू आता है वहां पे। और मिनिमम वाइब्रेशनल मोशन इज डिस्प्लेड एट दिस टेम्परेचर। तो फ़ारेनहाइट में जीरो कभी जाता ही नहीं। इम्पैक्ट कहाँ है मतलब? फ़ारेनहाइट में जीरो जाएगा, ऐसा नहीं है, पर फिर क्योंकि जीरो वहां पे काम का नहीं है, जीरो जाएगा तो केल्विन और सेल्सियस नेगेटिव में होगा बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर का। तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो जीरो केल्विन होता है। कितना होता है, जीरो केल्विन होता है। क्या कौन सा पोल भाई, नीले में है क्या? अरे कहीं पे भी नहीं आता है ये बस बताया जा रहा है कि लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इतना है, कहीं पे है नहीं है। फैंटेसी है।
तो तो ये है ना। तो -273 सेल्सियस की है ये। और वाइब्रेशनल मोशन इज मिनिमम, यानी कि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि हीट ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहानी है यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो की, इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। देखो कुछ इस तरीके से एब्सोल्यूट जीरो पे थर्मल एनर्जी जीरो होती है, तो लोवेस्ट अचीवेबल टेंपरेचर इन द यूनिवर्स, सारा मोशन स्टॉप हो जाता है, वर्चुअली स्टॉप होता है। मतलब ये रियल में ऐसा नहीं हो, मतलब रियल में ये स्टेज अटेन करना थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल काम पड़ जाता है। बट ऐसा पॉसिबल है चलो तुम लोगों को 320 हो रहा है 3